Assalamu alaikum to all. This is the topic that is a pseudocode, and this pseudocode basically related to your programming based paper that is P2. Okay, so what is pseudocode? Pseudocode is a method of expressing an algorithm design. Means you can express algorithm in two ways. The first one is the pseudocode, and the second is the flowchart. Okay, so we are discussing about the pseudocode. So pseudocode is basically a method to solve a particular problem. What problems are we talking about? We are talking about the computer problems. We are talking about the programming based problem, and also we can say that the task. Okay, particular task. So we um, write pseudocode basically in English language. Okay, but we use also programming terms or programming keywords like print, input statement, print statement, if then else, for, next, and while, do and while, repeat until. Okay, so we can say also that programming not programming, pseudocode is like a halfway between English language and programming code. Okay, so there is no such rules or a syntax to write a pseudocode, but when we write a pseudocode, it should make sense and logically solve the particular problem or task. Okay, so when you write a problem, and then after that, you can code in any language, in any programming language, like in C, C++, Java, Python. Okay, so you can easily code that programming languages. Okay, so here now is the next is, here's an example. This is the example of a pseudocode. Here is the first line, that is input mark. This is the basically, here we are taking input from the user, that is the mark variable. Okay, this is the variable. Variable is basically store our values, okay, like 5, like 6, like your name, okay, in a computer memory. So if this mark, if this variable is less than is 0 and greater than or greater than 20, then print the message that is invalid mark. Okay, else do this task. Okay, if this condition is true, then do this one, then do this task, otherwise um do this one. Okay, so now next is, here are the keywords, different keywords we involve in pseudocode. Okay, so here is the first one, that is a keyword, that is input statement. Okay, so input statement is basically here you can see the picture also, that this is a calculator and the second picture is the keyboard. Okay, so what is input statement? When you enter any data into the machine or software or any program, that is input. Okay, for example, you turn on the calculator. Okay, then you enter the number like 50, like 90, like 9 2. Okay, and then you enter also the operator and any mathematical operator like plus sign, minus, multiply, divide. Okay, and then you will again um, write the number. Okay, so this we use, that is called the input. Okay, so this is the input, and here you can see here the statement. This is the writing of pseudocode. Okay, here's the input keyword. This is the input keyword, and this one is the variable. Variable basically hold a value, and this one is the another way to write this keyword, that is input, and then inverted commas close, and here is the message. If you want to print, if you want to display a message for a user, okay, you will write in this inverted commas. Okay, and then comma, and this is the variable again. Okay, variable is very necessary. Now here is the next is print statement.
So print statement is basically is to show something on the screen, like any message, any value, any variable value, or whatever. Here is the print statement. We can see here that print number, and here is the another way, that is a print inverted commas message, any message that you want to display, and then comma, and then here is the variable. Okay, now we are basically using C compiler. Here we have, हमने सूडो कोड समझ लिया कि सूडो कोड में कैसे हम राइट करते हैं इनपुट स्टेटमेंट एंड द प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग इन द, after writing the pseudo code, you will write also the code in a programming language, but this is not a part of your paper, P2 paper. बट इसके बगैर आपको समझ में भी नहीं आएगा. ठीक है. सो आपने क्या करना है, जस्ट आपको मैंने अभी बताया है कि जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स अलग होते हैं. ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स वो नहीं होते जो सूडो कोड के होते हैं. सूडो कोड इज जस्ट लाइक अ प्लानिंग ऑफ योर प्रॉब्लम, ऑफ योर टास्क. ठीक है. सो आपने उसको सूडो कोड में राइट कर लिया. नाउ कमिंग टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रहे हैं और आप उसको राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह होगा, इसका सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट होगा. ठीक है. लेकिन मतलब आइडिया वही होगा प्रोग्राम का. आपने प्लान कर दिया कि इस तरह होगा, लॉजिक वही होगी, लेकिन सिंटेक्स डिफरेंट होंगे. ठीक है. और थोड़ा सा चेंज हो सकता है, देखते हैं हम क्या. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हमने इनपुट का देखा है. इनपुट हम लिखते हैं जस्ट सूडो कोड में, एंड देन हेयर इनपुट के बाद हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, डायरेक्ट नेम लिखते हैं वेरिएबल का जिसमें स्टोर होती है वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है. इनपुट कैसे लिखते हैं सी लैंग्वेज में. इनपुट का सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट. ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का पार्ट नहीं है, आप इसको सिर्फ समझें. ठीक है. ये हमने लिखा है डी कॉमा एंड नंबर. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द सी लैंग्वेज. ठीक है. इनपुट का ये सिंटेक्स बन गया है हमारा. अब यहाँ पे हमें रन करवाने के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन भी करवानी होती है. डिक्लेरेशन क्या होती है, ये हम सूडो कोड में भी करेंगे. जब भी आप कोई सूडो कोड राइट करोगे, ऊपर इंग्रेडिएंट लिखते हैं. इंग्रेडिएंट अपनी लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ मैं. ठीक है. यानी कि आप जो जो वेरिएबल का काम होता है उस सूडो कोड में, आप उसका ऊपर इंट्रोड्यूस भी करवा देते हो. भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इनकी डेटा टाइप भी है हमारे पास. ठीक है. यानी कि ये डाटा किस चीज़ का, कौन से टाइप का डाटा है. ठीक है. इंटीजर है, फ्लोटिंग है, या मतलब डेसिमल पॉइंट है, या फिर सिंगल करेक्टर है, या फिर मल्टीपल करेक्टर्स हैं, पूरा सेंटेंस है. ठीक है. सो दिस इज द, अभी मैं क्या ले रही हूँ, लाइक नंबर ही ले रही हूँ. सो मैंने क्या किया, इंट लिखा, नंबर लिखा. भाई ऊपर बता दिया कि मैं नंबर का वेरिएबल यूज कर रही हूँ, तो मैंने ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया. इसको कहते हैं डिक्लेरेशन. ठीक है. सो यहाँ हमने करवा दिया डिक्लेयर अपना वेरिएबल, दैट इज नंबर. यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो. नंबर बेसिकली क्या है, वेरिएबल है. और वेरिएबल क्या होता है, ये एक लोकेशन बना देता है आपका मेमोरी में. ठीक है. मेमोरी बहुत बड़ी है, उसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट चाहिए होगा जिसमें आपने सिर्फ एक नंबर स्टोर करवाना है. तो उस लोकेशन का नाम क्या है, उस लोकेशन का नाम है नंबर. ठीक है. तो बहुत बड़ी मेमोरी है, मेमोरी में से छोटा सा पार्ट जो है इसका नाम नंबर है, जिसमें आपका वैल्यू स्टोर होगी. ठीक है. लाइक इसको रन करवाते हैं हम. ये हमसे क्या मांग रहा है, ये हमसे यहाँ पे, ये देखो ये कौन सी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन. जैसे कि आपको किसी ने कैलकुलेटर आपने खरीद लिया, अब वो क्या चीज़ है, वो स्क्रीन आपका कैलकुलेटर, जहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है. सो दिस इज अ स्क्रीन जहाँ पे कोई कोड नहीं है, जो बेसिकली यूज़र को, कस्टमर को दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए. ठीक है. सो ये आपका
एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटेड स्क्रीन भी कह सकते हो उसको, ठीक है। और ये आपका कौन सा पार्ट है, दैट इज़ अ कोडिंग, ठीक है। ये आपका रनिंग पार्ट है, ये आपका क्या है, कोडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। सो आपने क्या किया यहाँ पे, ये करवा दिया। अच्छा, इसको मैंने रन भी करवाया है, रन करवाया ऊपर से। तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है। मैं कोई नंबर एंटर करूंगी, दैट इज 6, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, जस्ट हमने एक ही लाइन का कोड लिखा है, दैट इज इनपुट, कि मुझसे अभी इनपुट लो। आगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म तो नहीं करवाया मैंने, ठीक है। कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाया, जस्ट मैंने क्या करवाया है, इनपुट करवाया है। सो जस्ट इसने मुझसे इनपुट ही लिया है 6, आगे कुछ भी करके नहीं दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ स्कैन एफ यूज़ किया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब नाउ हमारे पास ये तो आपका इस तरह का है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट भी देख लिया, तो प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिखा, स्टेटमेंट लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये मुझसे देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ मुझसे मांग रहा है नंबर। ये इसने मुझे, अगर देखो पहले जो थी वो स्क्रीन खाली थी, तो अगर यूज़र बैठता उसको समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है। अब यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, दैट इज एंटर फर्स्ट नंबर, यानी यहाँ पे आपने नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। सो आपने एंटर करना है नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया। सो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करती है, ठीक है। एक बात ये हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना, तो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, अब नाउ इसके बाद मैं इनपुट के बाद, जो हमारा इनपुट था उसके बाद मैं प्रिंट एफ करती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ, ओके। एंड देन आई एम राइटिंग हियर आल्सो द स्टेटमेंट, दैट इज, ठीक है। इसमें सिंपल ये वाली आपकी कहानी चल रही है, दैट इज हेयर। प्रिंट करवाया है मैंने, रेफरेंस कौन सा दिया है भाई, करवाना क्या है उसकी कोई रेफरेंस तो दो, यानी कि नंबर मुझे, जो मैंने इनपुट करवाया था नंबर, वो ही प्रिंट में डाल दिया है, कि मुझे अभी कुछ करवाना नहीं, जस्ट प्रिंट करवाना है। क्या चीज़ प्रिंट करवानी है ये तो बताएं, तो प्रिंट करवाना है मैंने अपना नंबर, ठीक है। सो हेयर हमने क्या करवाया, स्कैन करवाया सबसे पहले, यानी कि इनपुट सबसे पहले प्रिंट एक स्टेटमेंट करवाई कि एंटर करो फर्स्ट नंबर। देन मैंने एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। देन क्या हुआ, आपका रिप्रेजेंट हो गया, मतलब ये नंबर जो है आपका एज अ आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ पे एज एन आउटपुट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह आ रही है हमारी स्क्रीन। ये नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ये कोड इसका, और इसने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया एंटर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्कैन, यानी कि इनपुट करवाओ। इनपुट में डाल यहाँ पे राइट करती हूँ, दैट इज 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनकी, कि प्रिंट नंबर करो, ये मेरा मैसेज है, ठीक है, ये मेरा मैसेज है। एंड देन नंबर का दे दिया, जो चीज़ स्कैन करवाई थी, जो चीज़ प्रिंट करवाई थी, सॉरी इनपुट करवाई थी, वही मैंने प्रिंट में डाल दी, कि प्रिंट क्या करना है, नंबर करना है, नंबर 8, ठीक है। सो हमने जो चीज़ बिल्कुल कैलकुलेशन के बाद, जो कुछ कैलकुलेशन भी तो कैलकुलेशन करवाई नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के बाद जब भी आप लास्ट में आंसर राइट करवाते हो, प्रिंट करवाते हो, तो उसका आपको रेफरेंस देना होता है, किसका, वेरिएबल का, ठीक है। कि कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाना है, किस में कैलकुलेशन हुई है, कौन सा रिजल्ट का वेरिएबल है जिसमें जो है प्रिंट
शो करवाना है, ठीक है। सो हमें मुझे क्या प्रिंट शो करवाना था, मुझे अपना नंबर ही शो करवाना था, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज द टुडे लेक्चर एंड okay, so this is the end of the lecture, and where we meet in the next lecture with the new topic, that is a variable. Okay, Jazakallah.